Hello, and a very warm welcome to Kitabeclub Live. Today we have with us author Rahman Abbas. So let's welcome him. I'll just add him to the chat, to the live. Okay. So in the meantime, I'll tell you who Rahman Abbas is and which book are we talking about today. So Rahman Abbas is a contemporary Indian novelist and winner of India's highest literary award, the Sahitya Akademi Award, for his Urdu novel Rohzin. So we'll be talking about Rohzin. So Rohzin won the award in 2018, and Rahman sir has authored 9 books, and his novel Rohzin has been translated into German, English, and Hindi. So let's welcome sir. So he'll be here with us any moment. For some reason, he's not able to join. Let me check once again. Hello. Hello. Hello, warm welcome. Yeah, thank you very much. How are you? I'm good. How are you, sir? Good. So I was just telling everybody about you and the books that you've authored, and also that Rohzin, the book that we're going to talk about today, has won the Sahitya Akademi Award in 2018, Yeah, and now it has been translated into German, English, as well as Hindi. yeah. So, how did this journey of being an author start? Uh, काफी लंबी कहानी है. Uh, आपके I पास was one of those students जिनको पढ़ने का बहुत शौक था, शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन. तो चौथी पांचवी क्लास से I started to read a lot of stories. And by my matriculation, I was reading real fiction, Premchand, Ismat Chugtai, and others. And then I did my graduation and master's with Urdu literature. And while doing, when I was a student of literature, certainly I come across a lot of other writers, serious writers, those who were writing fictions, and those who had contributed towards the literature, Urdu literature. And so ये सारा माहौल मिला, but I was basically fundamentally I was a reader, and I am still prefer to be a reader. I mean, fiction पढ़ना, रोजाना पढ़ना, उसके बगैर रहने का तसव्वुर मैं नहीं करता. So while it was a kind of, but then when I started writing around, while I was in graduation, I started writing small stories, but those were very क्या कहते हैं उसे, unpublishable stories. It was just what was in my head. But when in 96 I started 2-3 stories, and those were published in Shabkhun, which was an important Urdu literary magazine run by Shamsur Rahman Farooqi, the modernist in Urdu literature. So he appreciated those stories. And फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट स्टोरीज उर्दू में उसकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है. वी हैव प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई. You can name more 1 dozen authors who are so beautiful. They have written beautiful literature, short stories in Urdu. So मुझे ऐसा लगा कि हम क्या करेंगे लिखकर इनके सामने, इतना अच्छा लिख चुके हैं. So I paid attention on reading novels. So I went through, I started reading since the classics and other. और फिर मुझे ऐसा लगा कि नॉवल में शायद मैं कुछ अपना रास्ता तलाश कर सकता हूँ, because despite we have Quratul and Haider and Ismat Chugtai and Abdullah Hussain and other writer Khatija Mastoor and other, फिर भी मुझे लगा कि हम कुछ इसमें अलग सा कर सकते हैं. So in 2004 I published my first novella, and it was not taken well, and it was there was harsh reaction, and I had to resign from my post, and then there was an FIR against the book. It was
some religious forces with some politicians. They said, okay, it is an option literature. So I was asked to resign from my post where I was teaching. लेकिन और फिर उसके बाद I went to Arthur Road jail. I spent 2 days, then I got bail, and then 10 years it was a case in the court. But तब मुझे लगा कि नहीं, writing does matter. It has something which can either it can be hurt some people, but it is a tool which is a very powerful tool, and I should improve myself. I should learn from my mistakes. I should I should learn better craft. I should improve my language skills, style, and everything. And I work hard on it. And in 2009, I published my second novel, that is Ek Mamnua Mohabbat Ki Kahani. And again, I had a little bit bad luck. The North Indian Urdu wala didn't like it because this book speaks about Marathi culture, Maharashtrian boy like me. Urdu जिसकी mother tongue नहीं है. I mean, my mother tongue is Konkani, and fortunately, I was, admitted by my father into a Urdu medium school, so I learned Urdu. So, and मेरे घर पर कोंकणी बोली जाती थी. My mother was well versed in Marathi, और मेरा कल्चर मराठी का कल्चर था. So that novel discusses के Urdu in our parts, in Konkan region, it's an alien language, and it is like dominating our education system and everything. Not only education system, but our culture, our way of living. तो वो थोड़ा नॉर्थ के उर्दू वालों को थोड़ा सा वो किताब ठीक ठाक नहीं लगी थी. एंड देन खैर, लेकिन बट आई लर्न फ्रॉम दैट आल्सो. आई हैड डन लॉट ऑफ ब्लंडर्स व्हाइल राइटिंग. I was always learning because Urdu was not my mother tongue. So my third novel was published then after 3 years in 2016. Not 16, it was soon after. In 2011, that was Khuda ke Saye mein Aankh Micholi. And this book got huge reception in Urdu literature. It was praised by almost all writers from different pockets of Urdu circles. It was awarded Maharashtra State Academy. And even then I was not comfortable with, I was just still thinking that you can do better, you can learn it, because fiction is always about to learn and grow with writing. With passing time, you learn, you read a lot. So थोड़ी सी maturity जरूरी होती है to understand fiction and to understand how beautiful other people are writing in different languages, in Marathi, in Hindi, in Northeast, I mean different languages, and you can count. तो उसके बाद मेरा नॉवल छपा 2016 में, रोजिन, एंड इट वाज अबाउट अ बॉम्बे नॉवल. बम्बई की जिंदगी, बम्बई के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं. स्लम्स है, चार्ल सिस्टम है, साउथ बॉम्बे है, ये सब लोग किस तरह से जीते हैं, और पिछले 25-30 वर्षों में हमारे शहर के साथ क्या हुआ, किस तरह के बम ब्लास्ट हुए हैं, किस तरह की हेड पॉलिटिक्स हुई है, किस तरह का जो कुछ रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं सोशो पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट रहा है वो सामने था. लेकिन 2005 का जो बरसात था, उस बरसात ने जिस तरह से शहर को ऐसा लग रहा था कि शहर डूब जाएगा, तो वो जो मंजर था. और उन दिनों मैं कॉलेज में, आई वाज प्रिंसिपल इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सो आई वाज रिटर्निंग होम एंड आई हैड टू वॉक फॉर 6 आवर्स. तो तब मुझे उसका शदीद एक्सपीरियंस भी हुआ था. और वो रात, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम अपने घर में बैठे थे और आसमान ऐसा लग रहा था कि आज शहर से इंतकाम लेना चाहता है. वो लम्हा था. और फिर मैंने उसकी स्टडी भी की थी, और तो पता चला था कि 2000 के करीब लोग मरे हैं उस बरसात में. तो वो बम्बई पर एक तरह से जो आसेब था, जिसे हम कहते हैं, इट वाज अ कर्स लाइक अ रेन. So I try to keep that moment to central characters की जिंदगी के साथ उसको कनेक्ट करके गांठ बांधने की कोशिश की थी. और 2016 में 14 फरवरी को इत्तेफाक से रेख्ता का सेलिब्रेशन हो रहा था दिल्ली में, वहां पर नॉवेल लॉन्च हुआ, और उर्दू के काफी प्रोमिनेंट लिखने वाले उसमें थे. और विद इन 6 months it was really I got good reviews from different pockets, huge praise, reviews in English, Urdu, and so that novel got its place. And और 2018 में उसका जर्मनी में ट्रांसलेशंस भी हो गया. Then this book was inaugurated. ये ट्रांसलेशन था, उसका इनॉग्रेशन स्विट्जरलैंड में हुआ, so they invited me. So we spent a week in Switzerland.
फिर उसके बाद दैट माय पब्लिशर इनवाइटेड मी टू जर्मनी एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सो आई हैड टू स्पीक अबाउट बॉम्बे सोशल लाइफ, पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स, how different people from across India they come and they live and they settle. बम्बई का दिल कितना बड़ा है, जो जहां से आता है बम्बई में रहता है और फिर वो बम्बई का हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये जो बम्बई के सारे एस्पेक्ट्स हैं ये हमने डिस्कस भी किए थे। और तब फिर खुशनसीबी ये है कि 2018 में उसको ये जर्मन ट्रांसलेशन के बाद फिर इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो आई थिंक कुछ चीजें किस्मत की भी होती हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि आप पहली किताब में जेल जाएंगे और चौथे नॉवल पर आपको आपके देश का जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो मिलेगा। सो दिस इज द स्मॉल जर्नी। और अब 2021 में मेरा नॉवेल आया है नया, जिसे जिंदगी कहते हैं, जो यू कैन कॉल इट हेरेटिक और अपोस्टेट। This is a very different novel. It's a very long book, almost 800 pages. And for this book, I got a research grant from Germany, Robert Bosch Foundation, to visit Holocaust sites across Europe. So I've been to a lot of countries and visited, and I try to capture what had happened between 1920, 30, and 40 before Holocaust and the Second World War. How the entire mechanism of Hitler and Nazis, how they were abusing and accusing for each and every ill टू द ज्यूज, और ज्यूज को किस तरह उन्होंने अपनी कंट्री में अब्यूज किया था, उनके उनके राइट्स सबवोथ किए थे। तो वो सारी स्टडी करने का मौका मिला। एंड आई अफ्रेड, आई फियर, मुझे डर है कि अगर हमने महाभारत से और हॉलोकॉस्ट से सबक नहीं सीखा तो हम वो गलतियां कर सकते हैं। हमारा रीजन जिसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना हमारे बहुत करीब है, चाइना को यूरोप अलग नजर से देखता है। We have Pakistan, we have Kashmir dispute. There are so many regional issues. We have seen what happened in Sri Lanka. It had just gone bankrupt. Pakistan at the verge of bankrupt. Maybe next year it may suffer the same situation as Sri Lanka has gone through. We, as a dynamic economy, we are having our own issues after pandemic. So ये सारी चीजें और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो अपनी जगह, ये सब कुछ हमारे रीजन के लिए कैसे चैलेंजेस लाता है। फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के बारे में जो मेन स्ट्रीम है उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, व्हाट कुड दैट, आई मीन इफ दीज आर नॉट डेमोक्रेटिकली डील्स और डेमोक्रेसी सबवोटेड इन बोथ कंट्रीज, what could happen. So एक तरह से एंटी वॉर नॉवेल है, it's a pro peace novel. And at the same time, this novel discusses about the Puranic Katha, the Mahabharata, Ramayana, and how the stories, and stories from Jewish mythology, stories from Middle Eastern mythology, Semitic religion, Judaism, Christianity, and Islam, how they have predicted the last war. And before last war, what kind of political, socio-political equalities or inequalities will be there. So ये सारा कुछ मिलाकर, और फिर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के इश्यूज हैं, एलजीबीटी के इश्यूज हैं, इस तरह एक तरह, लेकिन ये आज से नहीं है, ये महाभारत के युग में भी था और ये 4000 साल पहले जूविश लिटरेचर के जरिए भी हमको पता चलता है। सो उसकी सारी एक कनेक्टिविटी की कोशिश है। तो ये छोटी सी जर्नी है नॉवेलिस्ट के तौर पे। सर बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। और कि आपने जिस तरह से बताई, आपने जिस तरह से ये कहा कि आप मतलब पहली नॉवेल जब आपने लिखी तब आपको जेल जाना पड़ा, लेकिन वहां से जो आपकी जर्नी रही है, आपने इतना कुछ सीखा और आपने उस अपने वो सब चीजों को आपने अपने नॉवेल में उन सबको आपने डाला और अपने आप अपना क्राफ्ट को और इम्प्रूव किया, ये बहुत बड़ी बात है। We learn, we do a lot of mistakes, और राइटर को पता होता है उससे कहाँ क्या गलती हुई, वो किस चैप्टर को ज्यादा बेहतर कर सकता था, किस कैरेक्टर पे ज्यादा वेटेज दे सकता था, राइटर को पता होता है और उसे पता होना चाहिए। वो किताब लिखने के बाद फर्ज करो कि आपकी किताब बहुत फेमस हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन मे बी वेरी क्रिटिकल अबाउट दैट बुक, सो वन हैज टू बी ऑलवेज इन अ मोड ऑफ लर्निंग। सीखना चाहिए, यू नो, और सीखना ही राइटर के लिए, और अपने दिल को खुला रखना चाहिए। इवन इफ यू आर गेटिंग बुकर प्राइज फॉर योर बुक लाइक गीतांजलि हैज गॉन, बट आई स्पोक विद मेनी हिंदी authors and they said कि this she has a very long sentences and all these things. So writer को हर बार सेल्फ असेसमेंट भी करना पड़ता है और सीखना पड़ता है ताकि you can work hard on your craft. बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक प्लेटफॉर्म पे इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मुझसे गलतियां हुई है और मैंने तो होती हैं और मैं करता हूँ एक्सेप्ट। बात है। और आप
आप अपनी जो लेटेस्ट नॉवल के बारे में बता रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सब टॉपिक्स जो आपने कवर करे हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। सो आई एम रियली लुकिंग कि मैं वो बुक खरीदूं और वो बुक मैं जरूर पढूं, थैंक डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू। तो अभी रोहजीन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने रोहजीन के बारे में रोहजीन पढ़ रही हूँ, अभी 50% मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बारे में मैंने पढ़ा और सब वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे ये समझ में आया कि रोहजीन कोई उर्दू का वर्ड है नहीं, ये वर्ड आपने कॉपी किया है। तो ये राइट सच है, इसका राइट। मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो रोजीन पर हम बात करेंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, उसकी वजह, और मेरा ख्याल है कि इंग्लिश में भी इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। हाँ। हमारे समाज में पेरेंट्स, माँ बाप की शादी होने के बाद अगर उनका किसी एक का या दोनों का भी किसी से अफेयर हो रहा है, तो हमारे समाज में उस माँ और उस बाप के लिए शब्द हैं। हम उन्हें हम्म। आवारा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन ये जो, अगर कोई छोटा बच्चा अपने माँ या बाप को किसी और के साथ देखता है, while in indulgence in sex, that a trauma for a kid, and he suffers through that trauma. What words we have for this psychological trauma to the kid? I think even in English or other languages, in Hindi, we never thought about these kids, or we never thought that it could affect a child. It may not affect all the kids who observe it, but there may be few kids who could be psychologically traumatized or affected seeing their mother or father having affair with someone else. तो ये ख्याल जहन में आया, तो मैंने कहा अब ये, इसके लिए तो कोई लफ्ज है नहीं, तो क्या करें। तो और ये मेरे जहन में ऐसा था, जब मैंने इस चीज पर गहराई से सोचा, तो मुझे लगा कि ये जो मेलानखोली है, ये आदमी के रूह को रगा हुआ एक रोग है। इट्स अ रोग टू योर सोल। तो मैंने उर्दू के दो शब्द रूह और हुज्न को मिलाकर एक तरह से उसका एक साउंड, जो मुझे नहीं पता कि कितना परफेक्ट साउंड है, सो आई सेड इट्स कैन बी रोजिन, तो द हम्म। मेलानखोली ऑफ द सोल। सो ये गम या ये जो मेलानखोली है, दिस इज कनेक्टेड टू योर सोल, एंड जब तक आप जिंदा हैं आप इसको नहीं भूल सकते। द काइंड ऑफ ट्रामा, और वो आपके दिल में एक छेद की तरह रहता है, एक सुराख बन जाता है, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। You are now 40, 50, 60, but you will remember it. That it's a very harsh, it's unforgettable memory in your brain. तो इसलिए फिर ये दो लफ्ज बने, और इसका एक्सेप्टेंस उर्दू में तो कम से कम मुझे नजर आता है कि या पीपल डिस्कस दिस वर्ड, एंड आई हैड आल्सो इन माय उर्दू टेक्स्ट आई हैड एक्सप्लेन दिस वर्ड द एंड ऑफ द नॉवल, बिकॉज आई थॉट के दैट विल बी बेटर फॉर, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था एक तरह से कि कैसे ये, लेकिन मेरे पास उसका साउंड क्लियर नहीं था। मैं ये नहीं पता रहा, कोई उसको रोजिन कहेगा, कोई रोजिन कहेगा, तो वो उर्दू वालों में जो रिव्यूज किया उन्होंने भी तरह तरह की आवाजें निकाली हैं उससे। बट लेकिन एक लफ्ज है, और मुझे लगता है कि वी शुड पे अटेंशन ऑन द किड्स हु सफर थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो सर रोहजीन के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? आपने उसमें मुंबई के काफी कुछ लिखा है। बम्बई का तो और मैंने बताया, बम्बई चूंकि आई मीन वी आर कोंकणी, सो बॉम्बे इज आर, वी कंसिडर इट्स बिलोंग्स टू अस। So my father, my grandfather, we all connectivity Konkan to Ratnagiri and Bombay. So this is तो उर्दू में बम्बई पर या बम्बई की जिंदगी को कैप्चर करने वाला कोई बहुत अच्छा नॉवल नहीं है। देर आर एफर्ट्स, देर आर वेरी स्मॉल एफर्ट्स। देर इज वन ब्यूटीफुल एफर्ट बाय कृष्णचंद, दादरपुर के बच्चे। लेकिन इसके बावजूद एक शहर को कैसे लाया जा सकता है एक नॉवल में, एक लार्जर कैनवस पर, जिसमें उस शहर और उस शहर में रहने वाले लोगों की अलग अलग इलाके के लोगों की अलग अलग साइकी। पर अगर लोखंडवाला में एक शाम आप गुजार रहे हैं, और धारावी में एक शाम आप गुजार रहे हैं, माहिम में एक शाम आप गुजार रहे हैं, ये सारी शामें एक जैसी नहीं होती हैं। जूहू बीच की शाम और अंधेरी में वीरा देसाई रोड के स्लम्स की शाम, ये इनमें क्या फर्क है, और इनकी जिंदगियों का क्या फर्क है, इनके घर कैसे हैं, इनके बर्तन कैसे हैं, इनका खाना पीना क्या है, इनका ये सब कुछ मुझे मेरे शहर का जो सारा सिनारियो मेरी नजर में रहा है, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिटी, वो मुझे नॉवल में लाना था। तो पहला इंस्पिरेशन तो शहर था, माई सिटी। और वो उर्दू नॉवल में नहीं आया, मुझे नहीं पता मराठी नॉवल ने क्या कितना जस्टिस किया है,
क्योंकि मेरी बहुत गहरी स्टडी मराठी नॉवल की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नजर, और इंग्लिश में जो लिखा गया वो काफी सरफेस पर है, नो। सरफेस पे नॉवल जो होता है वो काफी, इट्स नॉट योर एक्सपीरियंस बेसिकली। देयर आर वेरी फ्यू ऑथर्स हु कुड हैव come up with a book which explains or portrays city in a very serious way. तो वो मेरी नजर पे नहीं था, तो मैंने सोचा कि कम से कम आई कैन ट्राई। जो होता है बाद में देखा जाएगा, एक कोशिश करते हैं। तो ये पहला इंस्पिरेशन तो शहर था, और दूसरा इंस्पिरेशन तो नहीं कह सकते, दूसरा वो ख्याल था जो मेरे जहन में आया था कि ये बच्चे जो जिनकी बदनसीबी से उन्हें ये दिन कभी देखना पड़ता है, फिर उनके साथ क्या होता है, हाउ दे लिव देयर लाइफ, व्हाट हैपेंस टू देम, तो देयर स्टोरीज। तो ये सब कुछ मिलकर इस तरह से हो गया। हम्म। तो सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि जो इसका नॉट एग्जैक्टली ट्रांसलेशन, बट आप जो कह रहे हैं कि ये इस तरह का काफी सरफेस पे है, एक्सप्रेशन है अबाउट द सिटी एंड ऑल। तो सर, मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि रोज़ीन ने 2018 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। उसके बाद में जर्मन, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। तो नहीं, जर्मन ट्रांसलेशन पहले हुआ था, साहित्य ओके। अकेडमी मिलने से पहले हुआ था। सो सर, आपको लगता है कि इस बुक को जो उस समय 2018 के समय जिस तरह से देखा जाता था, जो परसेप्शन था लोगों का, और आज के समय में, आज 4 साल बाद जो परसेप्शन है, उसमें कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहले जब ये उर्दू में डिस्कशन हुआ था तो इट वाज डिस्कस फ्रॉम उर्दू राइटर क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। So they had their positive and negative reviews. They had their criticism on the use of language. Everybody is not agree from your slang, your idiom. तो वो सब हुआ। हाँ। लेकिन जब किताब जर्मनी में गई है, तो जर्मनी में एक तो मेरी खुशनसीबी ये थी कि जर्मनी का ट्रांसलेशन हमारा जो किया है वो अल्मुद डेगनर ने किया है, और उनको उनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस है। वो वहां पर उर्दू और पर्शियन, पर्शियन तो नहीं लेकिन उर्दू और हिमालयाई रीजन की लैंग्वेजेस पढ़ाती हैं, रही हैं, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एंड संस्कृत। तो उनका काफी एक्सपोजर लैंग्वेज का बहुत अच्छा है, एंड शी हैड कमांड ऑन जर्मन एंड उर्दू आल्सो। तो उसका फायदा ये हुआ कि द ट्रांसलेशन हैज बीन वेल प्रेज्ड बाय मेनी जर्मन टू हुम आई स्पोक, एंड देयर आर रिव्यूज आल्सो अबाउट इट। तो वो अब अंग्रेजी में आया है, तो अंग्रेजी में भी वी हैव कम अक्रॉस डिफरेंट रिव्यूज। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं इनको रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अंग्रेजी आ सकता था। तो हर तरह की बातें हुई, लेकिन अब इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। अब इसको अब नॉवेल को उस तरह से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इस तरह से देखा जा रहा है कि ये नॉवेल मतलब इन कंपैरिजन टू अदर नॉवेल्स हाउ इट डिस्क्राइब्स अ सिटी, इट्स अ नॉवेल अबाउट बॉम्बे एंड हाउ इट डिस्क्राइब। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव किताब को देखने का बदल जाता है, क्योंकि अब हिंदी में तो शायद वाणी प्रकाशन वाले उसको जैन या फेब में शायद पब्लिश करें, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में आने के बाद जो मेरा मेरा डिस्कशन हुआ है, जितने लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो रिव्यूज आए, आई थिंक इट इज अ लकी नॉवेल टू गेट रिव्यूज इन ऑलमोस्ट ऑल न्यूज़पेपर्स, और रिव्यूज जैसे होते हैं वैसे होते हैं, रिव्यू, हर रिव्यूअर का अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट बुक्स एंड लिटरेचर, सो दे डू देयर बेस्ट, एज मच बेस्ट दे कैन और दे आर कैपेबल ऑफ। लेकिन एक अच्छा स्पेस किताब को मिलता है, तो उससे किताब के बारे में एक तरह का डिस्कशन शुरू होता है। फिर सीरियस लिटरेचर जो लिटरली एस्थेटिक्स को बहुत बांध के रखना चाहता है, वो कमर्शियल और पल्प फिक्शन से काफी अलग होता है। बिल्कुल। ये सारी चीजें डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन खुद क्या कैसे डील कर रहा है टेक्स्ट के साथ। एंड उर्दू, एज यू नो, इट्स अ वेरी डेलिकेट लैंग्वेज, हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग अल्फाज हैं, हम हमारे पास किस के लिए कई अल्फाज हैं। हमारे पास मोहब्बत के लिए कम से कम 18 अल्फाज हैं फॉर वर्ड लव। हमारे पास जिन्स के लिए कई अल्फाज हैं, फॉर सेक्स वी हैव ह्यूज वोकेबुलरी फ्रॉम पर्शियन, अरबिक, हिंदी, प्राकृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो उर्दू ने उन सबको अडॉप्ट करके अपना बनाया है। तो अगर मैंने एक चीज के लिए बहुत सारे अल्फाज लिखे हैं, लेकिन अंग्रेजी में हो जाएगा तो एक या दो लफ्ज आते हैं। तो इस तरह से जो डेलिकेसी कहीं कहीं अफेक्ट होती है। फिर अगर हम बम्बई के डायलॉग हैं, एक मेरा कैरेक्टर अगर ये कह रहा है कि अभे तू क्या समझेगा, तो अभे विल नॉट बी अवेलेबल इन इंग्लिश। हाँ, या तेरी खोपड़ी में क्या, तो खोपड़ी का ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों अल्फाज ऐसे होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट फ्लेवर इनटू लैंग्वेज। एंड मैंने इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये दी थी हमेशा कि गालिब हमारा जो
जो ग्रेटेस्ट पोएट है, उसको जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यू रीड द वर्जन ऑफ ट्रांसलेटर, यू डोंट रीड खाली। वो हाँ। ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। इट्स नो। तो उर्दू का एक प्रॉब्लम, जो उर्दू का एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप, कि वो इतनी रिफाइन लैंग्वेजों में से एक है कि आसानी से आप उसका फ्लेवर नहीं ला सकते। तो दिस हैपेंस विद ट्रांसलेशन ऑल्सो, बट आई एम हैप्पी दैट मेनी young students, young readers, they are reading the book and they are uh, whatever the views they have about that book, they are writing and they're enjoying it. That's एक राइटर को और क्या चाहिए। सो एज एन ऑथर आपको कैसा लगता है जब आपकी बुक ट्रांसलेट हुई, क्योंकि आपकी बुक तो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। सो आपको कहीं ऐसा लगा है कि कुछ मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता था वो नहीं एक्सप्रेस हुआ है, या या कुछ चीजें हैं जो आपको लगी हैं कि बहुत अच्छी आ गई हैं लैंग्वेज में? फिलहाल मैं गीतांजलि श्री की तरह इतना लकी नहीं हूँ कि ट्रांसलेशन ओरिजिनल से अच्छा हो। but, but I expect there is a day for that also. लेकिन राइटर जो भारतीय भाषा में लिखता है, whether it is मराठी और हिंदी और उर्दू, उसे खुश होना चाहिए कि उसकी ट्रांसलेशन, उसकी बुक को किसी ने बहुत मेहनत करके अनुवाद किया है किसी दूसरी जुबान में। तो सबसे पहले उसे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक रास्ता बनता है, एक ब्रिज बनता है फ्रॉम योर लैंग्वेज टू द अदर लैंग्वेज। For example, I have also translated a book from Marathi to Urdu with a co-writer. So, ये ट्रांसलेशन का आदान प्रदान हमारी भारतीय भाषाओं में बहुत जरूरी है। और अगर आपकी किताब अंग्रेजी में होती है तो फिर वो भारत के बाहर भी उसके रीडर्स मिल जाते हैं उसको, बाहर की दुनिया जो बहुत बड़ी दुनिया है और जहां पर फिक्शन आज भी किसी हद तक पढ़ा जाता है, तो एक भारतीय राइटर को अगर हिंदुस्तान की दूसरे पढ़ने वालों को और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे पढ़ने वालों के तक पहुंचने का रास्ता मिलता है तो ही शुड बी हैप्पी। एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली अगर ये बुक ट्रांसलेट नहीं होती तो शायद भी नहीं हो पाती। सो हाँ, नहीं ना ये डिस्कशन होता। चीज है कि ट्रांसलेशंस की वजह से राइट, को बहुत सारे रीडर्स तक पहुंचने का एक बिल्कुल मौका मिलता बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ ये आप जैसे पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जिनका फिक्शन कहीं ना कहीं पैशन है, ये जिस तरह से स्पेस दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं, ऑथर्स को भी इनवाइट करते हैं, ये सब भी जरूरी है। और इसमें हम राइटर्स को भी, जो आप थोड़े सीनियर्स हो गए हैं, 20-25 साल से लिख रहे हैं, उनको भी वक्त देना चाहिए। और इस तरह का डिबेट 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 200, ये जो भी लोग जुड़ते हैं, साल वीडियो रहता है, बाकी रहता है, वो फिक्शन और हमारी भारतीय भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये काम हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से। और एक मेरा क्वेश्चन है कि जब आप रोजीन रहे थे, काफी समय हो चुका है, बट कोई ऐसी मेमोरी है जो अनफॉरगेटेबल है और आपको आप हमेशा उसे, याद करते हैं भी रोजीन की बात? बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन मैं एक दो शेयर करूंगा आपसे। एक तो ये कि स्विट्जरलैंड में जब इसका लॉन्च था, जर्मन एडिशन का, अच्छा, हम आम लोग बंबई में वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ लिटरली इवेंट्स एंड वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, but I was surprised, and it was first time in my experience that I witnessed that it was an auditorium of around 250 people. It was packed, and ऑडिटोरियम के बाहर लोग थे जहां पर स्क्रीन लगाकर दे वर लिसनिंग आवर डिस्कशन, या नहीं थे मुझे एग्जैक्टली आते, बट ऑडिटोरियम वाज पैक्ड। और मुझे बाद में पता चला कि ये जो लोग आए हैं उन्होंने टिकट्स खरीदे हैं और ये टिकट काफी महंगा होता है। तो ये बात मेरे लिए बड़ी अनोखी थी, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा है किसी लिटरली फेस्टिवल में, कि अगर किसी राइटर को आपको सुनना है या उसकी किताब पे डिस्कशन हो रहा है तो आप टिकट लेकर जाके बैठेंगे। हमारे यहाँ तो फ्री में, और अगर आप उसके साथ थोड़ा सा चाय और स्नैक रखे तब भी लोग नहीं आते हैं बहुत सारी जगहों पर ना। तो इस कल्चर से जब मैंने यूरोप में ये देखा कि किताब को के बारे में सीरियसनेस काफी ज्यादा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड दैट वाज रियली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। पिछले दिनों जब ये इसका इंग्लिश अनुवाद छपा तो मैं देहरादून में था, WIC ने इस पर एक डिस्कशन रखा था। देयर आई मेट अ वेरी वंडरफुल लेडी, और प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ, फिर चाय पीते वक्त हमारी उनसे बातें हुई और उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पे आपसे मिलने आई हूँ, और उसकी वजह ये है कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि ये किताब खरीदनी है। ही रेड समवेयर कि इसका सब्जेक्ट क्या है, और उन्होंने कहा कि दिस इज अ प्रॉब्लम माय चाइल्ड हैज सफर,
यू नो, एंड दिस वाज समथिंग, मुझे लगा यार ये कैसे मुमकिन है। मेरे जहन में सिर्फ तसव्वुर था, मेरे जहन में ये आइडिया था, लेकिन कोई आके सामने से ये बता रहा है आपको कि लुक माय चाइल्ड हैज विटनेस इट एंड ही हम्म, इज सफरिंग फ्रॉम इट, यू नो। सो द ट्रॉमा वी कांट अवॉइड, so that was something very serious to me to witness that text or content of a book has somewhere someone going through it. I think that was an unforgettable experience for me. एब्सोल्युटली। मतलब जो चीज आपने सोची, जिस टॉपिक पर आपने बुक वो लिखी, और वही चीज किसी ने एक्सपीरियंस करी है, तो वो उसका कनेक्ट आपकी बुक से बहुत ज्यादा Exactly, होगा। exactly, exactly, exactly. तो काफी इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना रोजीन के बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो थैंक यू वेरी मच नेहा, थैंक यू वेरी मच। उससे पहले मुझे आपसे अच्छा, एक दो चीज पूछनी है श्योर कि श्योर आप श्योर। free समय में क्या करते हैं? आपने कहा आप रीड बहुत करते हैं, तो उसके अलावा भी कुछ है जो उसके आपको अलावा करना? देखिए मैं तो बहुत ही मामूली मुंबईकर हूँ। मुंबई कर का आदमी कहीं आराम से बैठता नहीं है, उसको नौकरी होती है, काम करता है। सो अर्लियर आई यूज्ड टू बी इन एजुकेशन, बट देन इन सिंस 2007-8 आई डिसाइडेड दैट आई मे नॉट बी फिट इन education institutions because of my kind of writing and other things and kind of issues I deal with. So then I started to work for a think tank, strategic foresight group, and now I'm working for it. So मेरा काफी वक्त मेरे ऑफिस के रिसर्च प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कामों में गुजरता है। और उसके बाद जो वक्त मिलता है वो उस वक्त में मैं लिखता पढ़ता हूँ। पहले तो मैंने काफी क्रिटिसिज्म भी लिखा है, रिव्यूज भी किए हैं। आई इंट्रोड्यूस न्यू कमर्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, आई एम वेरी ओपन ऑन माई फेसबुक पेज। आई ऑल्सो डिस्कस व्हाट सीनियर्स हैव सेड अबाउट लिटरेचर एंड अदर थिंग्स। तो काफी वक्त मैंने उसमें गुजारा है। अब थोड़ा बाल पक गए हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि अपना वक्त मोर टू राइट अबाउट फिक्शन एंड मोर टू पे अटेंशन ऑन व्हाट बेस्ट आई कैन राइट। और जो गलतियां मुझसे हुई हैं मैं उसे कैसे सीख सकता हूँ, एंड हाउ कैन आई बिल्ड अ प्रोज विच विल बी एग्जाम्पलरी। तो एक ड्रीम होता है आपका कि आप नरेटिव पर इतना काबू पा लेंगे। आई मीन आई फैसिनेट व्हेन आई रेड अम्बर्टो इको और गाब्रियल गार्सिया मार्केज और हान पामोक। तो मुझे लगता है कि यू शुड ट्राई टू गेट मास्टरी ओवर लैंग्वेज एंड नरेशन। सो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ और अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ फ्री वक्त में। वंडरफुल सर। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्जेशन। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत 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 अच्छा। शुक्रिया ने, बहुत शुक्रिया नेहा, आपका भी। और आपका ये जो क्लब है उसका भी बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। दुआएं हैं आप खुश रहें, सलामत रहें, फिक्शन पढ़ें। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर। मच। थैंक यू वेरी मच।